Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss non-parametric methods and in which we are going to discuss chi-square distribution. So chi-square distribution is an extension of the binomial distribution, multinomial distribution in which more than two possible outcomes can occur in a single trial. So there are categories in every variable. The chi-square goodness of fit test is used to analyze probabilities of multinomial distribution trials along a single dimension. For example, if the variable being studied is economic class with three possible outcomes of lower income, middle income class, and upper income class, the single dimension is the economic class, and the three possible outcomes are the three categories or the three classes. On each trial, one and only one of the outcomes can occur. In other words, a family unit must be classified either as low income class or high income class or middle income class. So chi-square goodness of fit test compares the expected or theoretical frequencies of categories from a population distribution to the observed or actual frequencies from a distribution to determine whether there is a difference between what was expected and what was observed. For example, airline industry officials must theorize that the ages of airline ticket purchases are distributed in a particular way. To validate this or reject this expected distribution, an actual sample of ticket purchasers and their ages can be gathered randomly. The observed results can be compared to the expected results with the chi-square goodness of fit test. So this goodness of fit test can also be used to determine whether the observed arrivals at teller windows at a bank are Poisson distributed as might be expected. In the paper industry, manufacturers can use the chi-square goodness of fit test to determine whether the demand of paper follows a uniform distribution throughout the year, throughout different seasons of the year. So basically, chi-square goodness of fit test informs you about how strong is the fit. स्टेटिस्टिक्स को हम क्यों यूज करते हैं क्योंकि हम आगे फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि ठीक है ये हमारे पास ये सिचुएशन है ये हमारे पास कैटेगरीज है इन कैटेगरीज के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता या इन कैटेगरीज के दरमियान डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है तो जो काई स्क्वायर है काई स्क्वायर का टेस्ट ये स्टेटिस्टिक यूज होती है गुडनेस ऑफ फिट के लिए उसको देखने के लिए और ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी है This test loses one degree of freedom because the total number of expected frequencies must equal the number of observed frequencies. That is, observed total taken from the sample is used as a total for the expected frequencies. तो chi square का जो टेस्ट होता है ये रोज और कॉलम्स जब आप लेते हैं उसमें से n-1 या k-1 आप इसको जिस तरह भी देखना चाहें उस तरीके से होता है तो अगर हम chi square के बारे में बात करें chi square डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो chi square डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है जैसे इस ग्राफ में यहाँ पे नजर आ रहा है इस चार्ट में chi square डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होती है बिकॉज इट्स अ नॉन नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है It is based on degrees of freedom. When the degrees of freedom change, a new distribution is created. So degrees of freedom हम कब लेते हैं हम जब भी बात करते हैं degrees of freedom की that means you know the all the contributors. If you do not know all the contributors, you know at least all the contributors minus one to a certain result, towards a certain result. यानी आपके पास आपको से चार वेरिएबल्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर रिजल्ट की तरफ अगर आपको उनमें से तीन वेरिएबल्स पता है तो आप चौथे वेरिएबल का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा चार एलिमेंट्स हैं चार कैटेगरीज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिजल्ट आपको तीन कैटेगरीज का कंट्रीब्यूशन पता है तो आप चौथी कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप यूज कर सकते हैं SK-1 अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाते हैं आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा नॉर्मल होती जाती है हमने देखा जब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड तो थी लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में नहीं थी जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते गए 3 हुआ 5 हुआ 10 हुआ वैसे वैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती गई
और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ जाती है। तो जब भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज होते हैं, एक नई डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाती है। Chi square is goodness of a test of equal and expected frequencies. अब इसका क्या मतलब है? हम जब भी chi square को यूज करते हैं तो हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि जो हमारे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं और जो हमारी एक्चुअल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस है या इनके दरमियान स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। For example, suppose a store manager wants to find out whether the results of a consumer survey applies to customers of supermarkets in her city. To do so, she interviews 207, समझ लें, 207 randomly selected customers as they leave the supermarket in various parts of the city. She asks the customers how they would rate the level of service at the supermarket from which they had just exited. अब रिस्पॉन्स कैटेगरीज जो है इस सर्विस के लिए वो हो सकती हैं एक्सीलेंट, प्रिटी गुड, ओनली फेयर और पुअर। Observed responses from this study could be anywhere, like some majority of people may say it's pretty good. Say 109 people say it's pretty good, 21 people say it's excellent, 62 people say it's only fair, and 15 people say it's poor. So this is the observed frequency, the actual frequency. Now, the manager can use a chi-square goodness of fit test to determine whether the observed frequency of responses from the survey are the same as the frequencies that would be expected on basis of the national survey. So that could also be done through the chi-square goodness of fit test. तो हम पहले क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो आपके ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं और जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके दरमियान कोई फर्क है या नहीं है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप किस बेस पे लेते हैं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप इक्वल चांस की बेस पे भी ले सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो तमाम कैटेगरीज के लिए इक्वल होनी चाहिए। आप इस बेस पे भी ले सकते हैं, इफ यू डू नॉट हैव अ प्रेसिडेंस। आप इस बेस पे भी ले सकते हैं कि इससे पहले जो सर्वे कंडक्ट किया गया, या इससे पहले जो रिसर्च हुई, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज थी, क्या आप उन फ्रीक्वेंसीज को भी आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के तौर पे ले सकते हैं। और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी? जो आपने अब सर्वे कंडक्ट कराया उसका जो एक्चुअल टेली है, दैट इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल टेली ऑफ ईच कैटेगरी। तो हम कैटेगरी देख रहे हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल देख रहे हैं, और हम उस कैटेगोरिकल वेरिएबल में एफ नॉट और एफ एक्सपेक्टेड ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जब हाइपोथेसिस डेवलप करना है, तो हमारा एच नोट क्या होगा? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज wherever the expected frequencies are being derived from. These could be derived from an equal opportunity and equal chance among the categories. It could be derived from uh, an earlier result that you are using as a benchmark. तो दोनों तरीके से ये किया जा सकता है। और alternate hypothesis इसका exact opposite होगा। There is a difference between observed and expected frequencies. Test statistic इसकी है chi square is equal to summation f naught minus fe squared divided by fe. तो आप इसको एक टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले आप एफ नोट और एफ ई का डिफरेंस लेंगे, फिर आप उसको स्क्वायर करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे एफ एक्सपेक्टेड से, और फिर तमाम कैटेगरीज के लिए ये प्रोसेस रिपीट करेंगे और आखिर में आप इनको ऐड कर देंगे। Critical value is a chi-square value with k minus 1 degrees of freedom where k is the number of categories. तो हम जब भी इससे पहले हमने z डिस्ट्रीब्यूशन जब डिस्कस की थी, t डिस्ट्रीब्यूशन, f डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की थी, तो हम सबसे पहले अपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद हम फिर क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो हर एक का क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो काय स्क्वायर है उसका क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आप अपने अल्फा, जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, से आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखते हैं, तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तो आप अपने अल्फा को के साथ कंपेयर करते हैं अपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को।
और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं रोज और कॉलम में इन द chi स्क्वायर टेबल, दैट इज योर क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू को आप कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ chi स्क्वायर स्टेटिस्टिक के साथ। अगर आपकी chi स्क्वायर स्टेटिस्टिक आपकी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी chi स्क्वायर स्टेटिस्टिक आपकी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, विच इज योर ऑब्जेक्टिव। ओके, नल हाइपोथेसिस द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी, आपको इसको रिजेक्ट करना है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे अपनी क्रिटिकल वैल्यू को अपनी टेस्ट स्टेटिस्टिक के साथ, और जहां पे आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक आपकी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होगी, वहां पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट मींस देयर इज a significant difference in frequencies of expected and observed uh, measures in your particular problem. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। This Jan Kilpatrick is the marketing manager of a manufacturer of sports cards. She plans to begin selling a series of cards with pictures and playing statistics of former Major League Baseball players. One of the problems of the selection of the former players at a baseball card show at Southwick Mall last weekend, she set up a booth and offered cards of the following six Hall of Fame baseball players: Tom Seaver, Nolan Ryan, Ty Cobb, George Brett, Hank Aaron, and Johnny Bench. At the end of the day, she sold a total of 120 cards. The number of cards sold for each old-time player is shown in the table on the right. Now, can she conclude that the sales are not the same for each player? Use 0.05 significance level. यहाँ पे अल्फा 0.05 है, यानी आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ काम कर रहे हैं। और हम जब इस चीज को इस एग्जांपल को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, दोज आर बेस्ड ऑन इक्वल नंबर ऑफ चांसेस फॉर ऑल द कैटेगरीज। ठीक है। टॉम सीवर के जो कास्ट सेल आउट हुए वो 13 थे, नोलन रायन के 33, टारकॉफ 14, जॉर्ज ब्रिट 7, हैंक एरन 36, जॉनी बेंच 17, अ टोटल ऑफ 120। तो अब काय स्क्वायर स्टेटिस्टिक आपको मालूम है कि इस समेशन ऑफ एफ नॉट माइनस एफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। हमारे स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे। नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप कोई एक हाइपोथेसिस जो है इसको स्टेट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस कहता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एफ नॉट एंड एफ एक्सपेक्टेड, और ऑल्टरनेट कहता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफ नॉट एंड एफ एक्सपेक्टेड। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके एग्जांपल में है कि आप अल्फा लेंगे 0.05 पे। टेस्ट स्टेटिस्टिक हम यहाँ यूज करें काय स्क्वायर, क्योंकि हमें कैटेगरीज का डिफरेंस देखना है, उनकी इंडिपेंडेंस देखनी है। तो अब देखते हैं कि हम आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एक साइड पे आपकी क्रिटिकल वैल्यू है, ऑन द राइट हैंड साइड का स्क्वायर टेबल से जो आपने कैलकुलेट करनी है, और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपका एक्चुअल का स्क्वायर स्टेटिस्टिक की वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करें एज k-1। ठीक है। अच्छा, पोर्शन ऑफ का स्क्वायर टेबल अगर हम देखें, उसके अंदर जो यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ है, इसमें हम 0.05 को 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ करें, क्योंकि 6 कैटेगरीज हैं, तो k-1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, तो आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी चेंज हो सकते हैं। बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस video, this example we are taking k-1। तो अभी के लिए आपको सिर्फ k-1 ही याद रखना है। अब आपके पास टोटल कैटेगरी 6 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे, आपके पास 5 का आंसर है, दैट्स योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप देखेंगे कि कहाँ कोइंसाइड करता है 0.05 अल्फा के साथ। तो वहां पे जो वैल्यू आपके पास आती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 11.070, तो दिस इज योर क्रिटिकल वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करते हैं chi स्क्वायर स्टेटिस्टिक। जब आप chi स्क्वायर स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि 11.070 से अगर ज्यादा chi स्क्वायर स्टेटिस्टिक की वैल्यू आ रही है,
तो फिर आप अपने एज नॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर तो वैल्यू कम है 11.070 से, तो फिर आपका एज नॉट रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। इस तरीके से टेबल के थ्रू आप chi स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि तमाम कैटेगरीज के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का पहले हमने डिफरेंस लिया, उसके बाद हम इस डिफरेंस को स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने डिफरेंस लिया, सबसे पहले ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का उसको स्क्वायर किया, उनको आपस में डिवाइड किया एफ एक्सपेक्टेड के साथ, और फिर आपस में ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर आता है इसका 34.40 आता है, और हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या थी? 11.070। तो चूंकि 34.40 11.070 से ज्यादा है, तो ये रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है, और इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हम एच नॉट को आसानी से यहाँ रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी? अगर एच नॉट रिजेक्ट होता है, इसका मतलब आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सपोर्ट होता है, विच इज that there exists a significant difference in observed and expected values of those categories. And it is not due to chance, rather, the difference between observed and expected values is large enough to be considered significant. It is unlikely that car sales are the same among the six players. So, some players are more significantly more popular than the other players. अब कई दफा अनइक्वल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, और ये जो अनइक्वल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम किसी प्रायर सर्वे से, या किसी प्रायर रिसर्च से, या किसी और एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया पे देख रहे होते हैं। प्रोसेस इसका भी वही है कि एफ नॉट और एफ एक्सपेक्टेड को आप देखेंगे, और उसमें आप एच नॉट जो है वो रखेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। American Hospital Administrators Association reports the following information concerning number of times senior citizens are admitted to a hospital during a 1 year period. 40% are not admitted. बड़े हेल्दी लोग हैं ये, जो कि सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो कई दफ़ा हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेते हैं अपने लेटर ईयर्स में। 30% are admitted once, 20% are admitted twice, and the remaining 10% are admitted 3 or more times. A survey of 150 residents of Bartow States, a community devoted to active seniors located in central Florida, revealed 55 residents were not admitted during the last year. 50 were admitted to the hospital once, 32 were admitted twice, and the rest of those in the survey were admitted 3 or more times. तो ये देखिए कि आप अब जो सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाटो स्टेट्स के रेजिडेंट्स पे, और आप ये जानना चाहते हैं कि जो कैटेगरीज है आपकी, जिसमें नेवर एडमिटेड है, एडमिटेड वंस है, एडमिटेड ट्वाइस है, और एडमिटेड 3 or more times है, ये आपकी कैटेगरीज है। ठीक है, आप ये देखना चाहते हैं कि जो पहले सर्वे किया गया था अमेरिकन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स एसोसिएशन का, उसके जो रिजल्ट्स आए थे वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, और आप देखना चाहते हैं कि आपके बारह स्टेट्स के रेजिडेंट्स के सर्वे पे जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से किस तरह मैच कर सकते हैं। तो ये मैं बताती चलूं कि जो एग्जांपल्स हैं ये हमने लिंडन मार्शल से लिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बाय लिंडन मार्शल। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं वो इनइक्वल है, इक्वल नहीं है, और वो हमने एक प्रायर सर्वे से लिए हैं। लेकिन अभी भी हमारा सवाल वही बनता है कि हमारे ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के अंदर फर्क है या नहीं है। तो ये फर्क क्या डिटरमिन करेगा? ये फर्क ये डिटरमिन करेगा कि आपका जो बाटो स्टेट के रेजिडेंट्स पे सर्वे है, क्या वो सर्वे इन लाइन है अमेरिकन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स एसोसिएशन के सर्वे के साथ? इनके रिजल्ट्स तकरीबन सेम हैं या नहीं है, इनमें कोई फर्क है?
और इसके लिए भी हम अगेन 0.05 का सिग्निफिकेंस लेवल यूज करते हैं, जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आता है। तो स्टेप्स वही होंगे, सबसे पहले स्टेट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। Null hypothesis would be there is no difference between local and national experience for hospital admissions, or alternate hypothesis होगा there is a difference between local and national experience for hospital administration। फिर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे, वो 0.05 दिया हुआ है। टेस्ट स्टैटिस्टिक आप यहाँ पे काय स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो उसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास काय स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ नॉट माइनस एफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। उसी तरह आप कंपेयर करेंगे, पहले आप क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या है टेबल में से, और फिर आप टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे और दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, जो बाटो के रेजिडेंट्स थे उनमें फर्क एफ नॉट कहलाएगा, और जो एएचए यानी जो प्रीवियस अमेरिकन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स एसोसिएशन का जो सर्वे किया गया था, उसके जो रिजल्ट्स थे, वो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है। आपने उसके मुताबिक जब आपने परसेंटेज निकाला है टोटल का, आप देखें तो आपने उसका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेजिडेंट्स देखा है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे दोनों को। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करती चलूं कि आप जो फिगर देख रहे हैं एएचए का अर्लियर ऑन, दैट इज द परसेंटेज आउट ऑफ 100। क्योंकि आपने 150 रेजिडेंट्स पे किया, तो 150 रेजिडेंट्स पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन एएचए परसेंटेज क्या बनेगी, 60 बनेगी। ठीक है, तो आपने 60 को कंपेयर करना है 55 के साथ, आपने 40 को कंपेयर नहीं करना 55 के साथ, बिकॉज 40 वाज द फ्रीक्वेंसी ऑन 100 रेजिडेंट्स। तो आप 40 को कंपेयर नहीं करेंगे, आप 150 पे स्केल बराबर करके वहां पे कंपेयर। आपने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया, 60 और 55 का, और आपने उस डिफरेंस को देखने के बाद इनको स्क्वायर किया, एफ ई से डिवाइड किया, और उसके बाद आपने इनको ऐड कर लिया। तो आपकी जो टोटल स्टेटिस्टिक आती है, काय स्क्वायर स्टेटिस्टिक, वो आती है 1.37। आपकी क्रिटिकल वैल्यू क्या थी, 7.815, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 थे, 0.05 अल्फा पे आपने देखा, तो 7.815 से आपकी एक्चुअल स्टेटिस्टिक की वैल्यू कम है, इसका मतलब यू कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। The difference between observed and expected frequencies is due to chance. Therefore, you can conclude that Barstow states के residents पे जो survey किया गया, that is in line with the results of the survey carried out by American Hospital Administrators Association. और दोनों में कोई significant statistical difference exist नहीं करता। Okay, so that is chi-square for you. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि chi स्क्वायर को हम SPSS पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको कैसे रन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।